The safety, honor, and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort, and safety come last, always and every time. The Shetwood Credo has been the guiding beacon to all the gallant officers of the Indian Army. The annals of the Indian Armed Forces are replete with stories where men with unparalleled courage and comradeship have immortalized themselves in history. आज हम ऐसे ही दो महावीरों की शौर्य से आप सभी को अवगत कराएंगे जिन्होंने अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपने सर्वस्व का त्याग किया है। मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित कैप्टन शुभम गुप्ता 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल और शौर्य चक्र से सम्मानित कैप्टन एमवी प्रांजल 63वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। इनके शौर्य से हमारा परिचय कराएंगे केया पड़ालकर, धृति नगरे, तन्वी ठाकुर और प्रार्थना शिंदे। मैं एनसीसी कैडेट्स और तन्वी ठाकुर और प्रार्थना शिंदे से अनुरोध करती हूं कि वे कैप्टन शुभम गुप्ता और कैप्टन एमवी प्रांजल के वीर माता और वीर पिता को सम्मानपूर्वक इस रणभूमि पर ले आएं। Hailing from Agra, Captain Shubham Gupta was commissioned into Corps of Signals in 2015. An adventurer and a daredevil in real life, he volunteered for Special Forces. After grueling probation, he was inducted into Elite 9 Para Special Forces. During November 2023, Captain Shubham Gupta was deployed in the Rajouri sector of Kashmir Valley. The unit had to undertake counter-insurgency operations on the regular basis. Based on the information from valid source, the unit decided to launch cordon operation along with 63 Rashtriya Rifles along with Jammu and Kashmir on 22 November 2023. As part of army contingent, Captain Shubham Gupta was leading the troops from 9 Para Special Forces along with the soldiers from 63 Rashtriya Rifle Battalion. During the operation, 2 of the Para Special Forces got grievously injured. Unmindful of his own safety, Captain Shubham Gupta extricated both individuals and also returned counter-firing, which resulted in grievous injuries to the enemy. However, while doing so, Captain Shubham Gupta got caught in the volley of fire, sustaining fatal bullet injuries. Captain Shubham Gupta was a valiant soldier and a gritty officer who laid down his entire life at the age of 28 in the service of nation. For his exceptional courage and supreme sacrifice, Captain Shubham Gupta was awarded the Sena Medal posthumously. He is survived by his parents and a younger brother. I, Keya Padalkar, request Dhriti Nagare to introduce us to Captain M.V. Pranjal of 63 Rashtriya Rifles, who was a part of this same operation and laid down his life in the line of duty. Captain M.V. Pranjal hailed from Bangalore and was born on 18 July 1995. He always nursed the idea of serving in the armed forces while growing up. In the year 2014, he passed out of Officers Training Academy and was commissioned into the Corps of Signals. Captain M.V. Pranjal was deputed to serve with 63 Rashtriya Rifles Battalion deployed in Jammu and Kashmir for counter-insurgency operations. The unit had to undertake counter-insurgency operations on a regular basis. A search and cordon operation was planned on 22nd November 2023 along with troops of 63 Rashtriya Rifles, 9 Para Special Force and Jammu and Kashmir Police. As the search operation was underway, the terrorists opened fire at the troops in a bid to escape. Captain Pranjal, sensing the danger and in a bid to save lives of civilians, came out of his cover to pin down the terrorists. However, while doing so, he was caught in the volley of fire and sustained fatal bullet injuries. Captain M.V. Pranjal was a valiant soldier who laid out his life in the highest traditions of the Indian Army. For his unparalleled courage, exceptional leadership and supreme sacrifice, he was awarded the Shaurya Chakra posthumously.
He is survived by his parents and wife. Today, we pay our highest respect to this brave warrior. I request Prarthana Shinde and Tanvi Thakur to introduce us to these two courageous officers. करते हैं भारत मां से ये गुजारिश कि तेरी सेवा के अलावा कोई बंदगी न मिले, हर जन मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी न मिले। आज हम ऐसे दो वीरों की शौर्य गाथा बयां करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह गाथा है मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित कैप्टन एम.वी. प्रांजल जी की और मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित कैप्टन शुभम गुप्ता जी की, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और अद्वितीय वीरता से हमें अवगत कराया है। कैप्टन एम.वी. प्रांजल जी का जन्म 18 जुलाई 1995 को बैंगलोर में हुआ, लेकिन उनका बचपन मैंगलोर कर्नाटक में बीता। वो पिता श्री एम. वेंकटेश और माता श्रीमती अनुराधा के इकलौते पुत्र थे। बचपन से ही उनके मन में सेना में सेवा करने का सपना था। वे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल सूरतकल तथा महेश पीयू कॉलेज मैंगलोर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 12वीं कक्षा के बाद उन्हें बैंगलोर के आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने सेना में करियर करने का फैसला किया। कैप्टन एम.वी. प्रांजल ने सबसे पहला प्रयास किया तो एयरफोर्स में था, लेकिन उनका कद ज्यादा होने की वजह से उन्होंने टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 30 के माध्यम से सेना में प्रवेश लिया और पूरी भारत में दूसरी रैंक हासिल की। 2014 में वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया से उत्तीर्ण हुए और उन्होंने द कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। कैप्टन एम.वी. प्रांजल एक उत्साही फोटोग्राफर, यात्राओं के शौकीन और समर्पित स्काउट रेंजर थे। जब भी वे छुट्टियों पर मैंगलोर आते थे, वे बीएड के छात्रों को भारतीय ध्वज संहिता के बारे में पढ़ाते थे। अपनी सेवा के कुछ ही वर्षों बाद अगस्त 2021 में उन्होंने अपने बचपन की दोस्त श्रीमती अदिति से विवाह किया। बाद में कैप्टन एम.वी. प्रांजल को कश्मीर घाटी में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए 63 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात किया गया। 63 राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट है, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा, उच्च स्तरीय रणनीति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जानी जाती है। 2023 तक उन्होंने लगभग 9 वर्षों की सेवा पूरी कर ली थी और विभिन्न चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल क्षेत्र में सेवा दी थी। उन्हें दिसंबर 2023 में मेजर के पद पर पदोन्नति मिलने ही वाली थी, लेकिन नियति के मन में कुछ और ही था। 9 अक्टूबर 1995 को उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाले श्री बसंत कुमार गुप्ता जी और श्रीमती पुष्पा देवी गुप्ता जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर बचपन से ही वे पर्याप्त रूप से स्वस्थ नहीं थे। बच्चे का शारीरिक रूप से कमजोर होना माता पिता के लिए चिंता का कारण बनता गया, पर बच्चा हार मानने वालों में से नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह वीर योद्धा अपनी जिंदगी को मातृभूमि के आंचल में सौंप देने की हिम्मत रखता होगा। वही बच्चा केवल 19 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति के बल पर भारतीय सेना में चयनित हुए। यह पहचान है हमारे धैर्यशील शूरवीर कैप्टन शुभम गुप्ता जी की। वह बड़े ही खुशमिजाज किस्म के इंसान थे। वह हिंदी गाने और सिनेमा में खास रुचि रखते थे और उनके दिलदार स्वभाव के लिए दोस्तों और परिवार के बीच जाने जाते थे। आगरा में अपनी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे तकनीकी प्रवेश योजना TES के माध्यम से भारतीय सेना में चुने गए। वर्ष 2018 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA गया से उत्तीर्ण हुए और 8 दिसंबर 2018 को द कोर ऑफ द सिग्नल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। अपनी लंबी समय से संजोई हुई विशेष बलों में स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने की ख्वाहिश को पूरा करने 2020 में उन्होंने 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए स्वेच्छा से आवेदन किया और वे तुरंत ही चुने गए। 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस पैराशूट रेजिमेंट का ऐसा हिस्सा जो आमतौर पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देता है।
9 पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस को घोस्ट ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है, जो उनके गुप्त और उच्च जोखिम वाले अभियानों को पूरी सटीकता से अंजाम देने की क्षमता रखता है। 2023 के दौरान कैप्टन शुभम जी की यूनिट को रजौरी के घने जंगलों में तैनात किया गया था। मध्य नवंबर 2023 कालाकोट गांव अप्रत्याशित रूप से शांत था, जैसे कि घाटी के पर्दे के पश्चात एक अस्थिर स्थिति चल रही थी और उसका आगाज कुछ वैसे ही हुआ। आतंकवादियों ने स्थानीय आबादी के बीच अपनी हिंसक विचारधारा फैलाने के इरादे से क्षेत्र में घुसपैठ की थी। ग्रामीणों के वेश में उन्हें गांववालों से बात करते हुए देखा गया। वहां उन्होंने निवासियों को चालाकी से बरगलाने की कोशिश की। उनकी ये भयंकर गतिविधियों ने तब ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने उन गांववालों को धमकाना शुरू किया जिन्होंने उनकी इन हिंसक मान्यताओं का विरोध किया। चिंतित स्थानीय लोगों और मुखबिरों ने इन खुफिया हलचलों की सूचना भारतीय सेना को दी। तुरंत ही सेना की जांच में भी पुष्टि हुई कि ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से ही जुड़े थे, जिनमें उनका एक प्रमुख संचालक कादरी, एक प्रशिक्षित स्नाइपर और बम विशेषज्ञ भी शामिल था। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें 63 राष्ट्रीय राइफल्स का नेतृत्व करते हुए कैप्टन MV प्रांजल और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस का नेतृत्व करते हुए कैप्टन शुभम गुप्ता जी और उनकी फौज इस ऑपरेशन में शामिल हुई। 21 और 22 नवंबर की रात को कलाकोट इलाके के घने गुलबाड़ जंगल में एक संयुक्त ऑपरेशन जारी हुआ। ऑपरेशन का उद्देश्य था घने जंगल में छुपे आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरे को बेअसर करना। क्षेत्र में कम दृश्यता और कठिन पहाड़ी इलाके के कारण सेना के लिए रास्ता ढूंढना और आतंकवादियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका था। जैसे ही सैनिकों ने तलाशी अभियान शुरू किया, कैप्टन MV प्रांजल और उनके साथियों ने गुप्त खतरे को महसूस किया और नागरिकों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सबसे पहले सोचते वो उस क्षेत्र में चल दिए। जब खोज अभियान चल रहा था, तब आतंकवादियों को इस चीज की भनक लगी और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। इसी के चलते हमारी सेना ने भी उस भीषण गोलीबारी का डटकर जवाब दिया। आतंकवादी एक ढोक में छुपे हुए थे और वहीं से सैनिकों को निशाना बना रहे थे। अपने साथियों और नागरिकों को खतरे में देख कैप्टन MV प्रांजल अपने जीवन की परवाह न करते हुए आतंकवादियों को रोकने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान वे गोलियों के चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। कैप्टन शुभम जी भी मौके पर पहुंच ही रहे थे कि उन्हें एक खबर आई। कैप्टन प्रांजल जी को वीर गति प्राप्त हो चुकी थी। कैप्टन शुभम जी रणभूमि पर बिना किसी भय के कैप्टन प्रांजल जी के पवित्र पार्थिव को अपनी बाहों में थामकर सुरक्षित स्थल पर ले आए। उनके गोलियों से छलनी सीने को गले से लगाकर कैप्टन शुभम जी ने प्रतिज्ञा ली कि भारत माता के इस वीर सुपूत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका बदला अवश्य लिया जाएगा। अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए फिर एक बार कैप्टन शुभम जी रणभूमि पर लौटे। भारी गोलीबारी के दौरान दुर्भाग्यवश वे भी गोलियों की चपेट में आ गए। इन वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इन भारतीय सेना के शूरवीरों ने अपने सीने पर गोलियां झेलते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन MV प्रांजल जी को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और कैप्टन शुभम गुप्ता जी को उनके सर्वोच्च बलिदान और अपरिमित साहस के लिए 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा गया। आज यहाँ हमारे बीच कैप्टन MV प्रांजल की वीर माता और वीर पिता उपस्थित है और हमारे बीच कैप्टन शुभम जी के वीर माता पिता उपस्थित है। आज हम इन वीर परिवारों को अपना रक्त तिलक अर्पण कर कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद। रक्त तिलक से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी। कैप्टन MV प्रांजल एक बहादुर, जिंदा दिल और खुशमिजाज इंसान थे ही, जो हर पल खुलकर जीना चाहते थे। और उनकी वीर माता ने मुझे उनके बारे में एक ऐसी ही अत्यंत भावुक बात बताई कि कैप्टन प्रांजल ने पहले ही अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को एक बात बता रखी थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो चाहेंगे कि उनके लिए एक शानदार विदाई की जाए, एक परफेक्ट फेयरवेल।
उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनके फेयरवेल में लोग उनके मनपसंद कन्नड़ लोकगीत और अंग्रेजी गाने गाए, उनका पसंदीदा माउथ ऑर्गन बजाया जाए और उनकी पसंदीदा कविताएं सुनाई जाए। वो चाहते थे कि उनका परिवार खुशी खुशी उन्हें विदाई दे। हालांकि ये किसी भी परिवार के लिए बिल्कुल कठिन और अकल्पनीय होता है कि वो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखकर ऐसा कुछ कर सके, लेकिन इस वीर परिवार ने और उनके दोस्तों ने अपने बहादुर बेटे को वैसे ही विदाई दी जैसी उन्होंने चाही थी, सम्मान, प्यार और गौरव से भरी मुस्कुराहट के साथ। To Captain M.V. Pranjal, wherever you are, consider your wish fulfilled. Not only it was honored at your farewell, but even here today, we all are celebrating you and all our soldiers. With immense pride in our hearts, we all feel very fortunate to even be a little part of your farewell. Thank you. आज कैप्टन शुभम गुप्ता के वीर माता पिता को सम्मानित करने के लिए मैं अनाम प्रेम से श्री चिन्मय शेगले और श्रीमती प्रिया शेगले को अनुरोध करती हूँ, और कैप्टन एमवी प्रांजल के वीर माता पिता का सम्मान करने के लिए मैं नितिन अग्रवाल और श्रीमती पूजा अग्रवाल को बुलाना चाहूँगी। कैप्टन शुभम गुप्ता के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। अनाम प्रेम ऑर्गेनाइजेस a 3-day felicitation workshop program for the speech and the hear impaired children. This is done on the 2nd of October every year. In the year 2022, it was done in Mathura, and Captain Shubham Gupta himself was part of this initiative and willingly and lovingly served the speech and the hearing impaired children lunch. इससे उनके दिल में जो दूसरों बच्चों के लिए, वंचित श्रेणी के बच्चों के लिए जो प्यार है वो साफ झलकता है। Both Captain Shubham Gupta and Captain M.V. Pranjal have led a life extraordinaire. They have laid down their lives in the highest traditions of the Indian Army, saving lives of many civilians and the men under their command. Immortalized in history, their bravery and comradeship will continue to inspire generations to come. इन दोनों वीर परिवारों का कोटि कोटि नमन। मैं एनसीसी कैडेट्स और तन्वी ठाकुर तथा प्रार्थना शिंदे से अनुरोध करती हूँ कि वे इन दोनों वीर परिवारों को ससम्मान के साथ अपने स्थान पर ले जाएं। करने के लिए नितिन अग्रवाल और पूजा अग्रवाल से अनुरोध करती हूँ।
प्रिंसिपल प्रार्थना शिंदे से अनुरोध करती हूँ कि वे कैप्टन एमवी प्रांजल के पेरेंट्स को ससम्मान अपने स्थान पर ले जाएं।